علاج کی پیشکش کر دی. میں ترکیہ سمیت تمام ممالک کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے خان صاحب کو. شمد قریشی کا میڈیا سے گفتگو میں شکریہ کا پیغام. رانا ثناءاللہ کی نیب انکوائری ختم کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں منظور. وکیل امجد پرویز نے کہا کہ عدالت کو رانا ثناءاللہ کے خلاف کرپشن کے کوئی کیسز نہیں ملے. آئی جی پنجاب نے کہا حکومت نے مقدمہ روکنے سے روکا. آج بتائیں کن وجوہات کی بنا پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا. وہ بتائیں کس سے ہدایات لے رہے تھے. فیصل شاہکار صاحب نے عدالت میں مسلسل غلط بیانی کی. سابق وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا نجی ٹی وی سے گفتگو میں آئی جی پنجاب پر سوالیہ تنقید کی بھرمار. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امید الحق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو وارننگ. کہا کہ میں اگر وزیر نہیں رہوں گا تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے. ہٹ دھرمی نہیں چلے گی. آپ وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل درآمد کریں. عمران خان کو دھمکی. ملزم رائے قمر کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزم کو دوبارہ 14 نومبر کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت پیش کیے جانے کا حکم. سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے اپنی معطلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی اور دائیں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاق کے عہدے سے معطلی اور ٹرانسفر کی نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا گیا. دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا سامنا ہے. بڑی معیشتوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اقوام عالم کو موسمیاتی تبدیلیوں میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز کا سمٹ سے خطاب میں اقوام عالم کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حامل اداروں کے نام پیغام. پاکستان آل راؤنڈر ندا ڈار کی آئی سی سی وومین پلیئر آف دی منتھ قرار. کھلاڑی نے اعزاز حاصل ہونے پر ٹویٹر پر خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایوارڈ کے لیے نامزد ہونا ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹویٹر کے بعد میٹا بھی ہزاروں ملازمین کو برطرف کے لیے تیار. ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کا عمل 9 نومبر سے شروع ہونے کا امکان. سعودی فضائیہ کا علاقہ طیارہ F-15 فوجی مشق کے دوران گر کر تباہ. پائلٹ بحفاظت باہر نکال لیا گیا اور حادثے کی تحقیقات پر کام جاری ہے. آزاد خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کا آغاز. لاکھوں سکھ مرد اور خواتین کی خصوصی شرکت. ریفرینڈم میں شرکت کرنے والوں کی اقوام عالم سے آزاد اور خود مختار خالصتان کا مطالبہ. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ بغیر پائلٹ فوجی ہیلی کاپٹر نے 2 مشن مکمل کر لیے. تجربہ 12، 14 اور 18 اکتوبر کو ایریزونا میں واقع فوجی مرکز میں کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس نیوز اور میں ہوں یاسر خان. اور محفوظ ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی ملاقات ہوئی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मिस्र में काप 27 के सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी मफाद के मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने पर इतफाक हुआ और वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की फराग दिलाना इमदाद पर UAE की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना तन्हा तरक्की पज़ीर ममालिक के बस में नहीं, इसलिए आलमी बरादरी को मिलकर कुर्रा अर्ज़ की बका का मुश्तरका चार्टर बनाना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने कहा कि हकीकी ज़ाती लॉन्ग मार्च कल नहीं बल्कि परसों से शुरू होगा। इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा कि लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में तब्दीली कर दी गई है। लॉन्ग मार्च कल के बजाय परसों से शुरू होगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से कभी समझौता नहीं हो सकता। पूरी कौम अब तैयार है, इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। मेरा लॉन्ग मार्च हर सूरत में मंजिल हासिल करेगा। सरहदों पर खड़े फौजी मेरे बच्चों की तरह हैं। आर्मी चीफ की तकर्री मेरा इशू नहीं, पाक फौज हमारी है और इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज शुरू हो गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ PTI कारकुनों का दारुल हुकूमत समेत दीगर शहरों में एहतजाज जारी है। कारकुनों ने पुलिस से झड़पें और जलाओ घिराव करते हुए एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इमरान खान पर हमले के खिलाफ रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर अहम शाहराह ब्लॉक कर दी। GT रोड पर ट्रैफिक जाम, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद में लाहौर और पेशावर मोटरवे रास्ते बंद कर दिए, जिसके लिए पुलिस और रेंजर्स रवाना हो गई हैं। अगर मैं वजीर नहीं रहूंगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे, हट धर्मी नहीं चलेगी। आप वजीर आजम की हिदायत पर अमल दरामद करें। वफाकी वजीर PTI सईद अमीनुल हक ने इसहाक डार को खबरदार कर दिया। कराची में वफाकी वजीर अमीनुल हक ने IT पार्क मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम का हुक्म है कि IT और टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देना होगा। इसहाक डार से कहता हूं कि अपने रवैये में तब्दीली लेकर आएँ। सैयद अमीनुल हक ने कहा कि वजीर खजाना को अच्छी तरह मालूम है कि मैंने क्या कह रहा हूँ, हट धर्मी नहीं चलेगी। आप वजीर आजम की हिदायत पर अमल दरामद करें। मैं अगर वजीर नहीं रहूँगा तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। वजीर खजाना ने हमारी वजारत के तमाम प्रपोजल रोके हैं। 15 दिन पहले ज़राअत के लिए काम हुए, लेकिन किसी तरह कंपनियों को बुलाऊंगा। इमरान खान ने कातिलाना हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिखकर मुल्क में आईन और कानून के इनहराफ की राह रोकने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, कौम मेरी हकीकी आज़ादी को पुकार पर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्ज़ामात, हिरासगी, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों, हत्ता कि ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत 3 आला शख्सियात का नाम लेकर कहा कि इनका मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में आया। गुज़िश्ता हफ्ते मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जमा पहनाने की कोशिश की गई। अल्लाह ने मुझे बचाया। बतौर सरबराह से रियासत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कि कौमी सलामती के जड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें और अपनी क़यादत में ज़िम्मेदारों का तयन के लिए तहकीकात इन ज़िम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। आमदन से ज़्यादा असासा जात केस, लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक केस की समाअत की। नैब के वकील फैसल बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म पर नैब ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। ANF ने राना सनाउल्लाह को मंशियात केस में गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट ने इनकी जमानत हुई। राना सनाउल्लाह के वकील अमजद परवेज ने कहा कि ANF ने कहा राना सनाउल्लाह से सारी जायदाद मंशियात कारोबार से बनाई है। नैब के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने इसासे करप्शन से बनाए हैं। नैब ने भी जायदाद की छानबीन के लिए नोटिस भेजा, जिसे अदालत में पेश किया गया। वकील राना सनाउल्लाह ने बताया कि ANF वाला मामला मुतल्लिका अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसके बाद अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर राना सनाउल्लाह की नैब इंक्वायरी ख़त्म करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान हमले पर 24 घंटे में FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोइन अदालत केस की समाअत हुई। इस समाअत के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान पर हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। लाहौर रजिस्ट्री से आईजी पुलिस भी वीडियो लिंक पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 90 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत FIR दर्ज होना जरूरी है। अदालत फौजदारी निज़ाम इंसाफ को बिला रुकावट चलाने को यकीनी बनाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब को 24 घंटे में इमरान खान पर हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर FIR दर्ज ना हुई तो अज खुद नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनाल ने कहा कि यहां कानून की नहीं बल्कि अशरफिया की हुक्मरानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनाला ने कहा कि जो कुछ मेरे बारे में कहा गया है इसका क्रेडिट नहीं लेता, ये तमाम क्रेडिट्स इस हाई कोर्ट के जज के हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी हाई कोर्ट्स की तरह नहीं है, ये हाई कोर्ट है जो फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बार मुल्क बेहतरीन बार है। वॉइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने जिस वाक़े का हवाला दिया उस वाक़े के बाद मुआफ़ी के तनाज़ुर का मामला ही नहीं, क्योंकि सब वकला को हमने फैमिली की तरह ट्रीट किया। सिविलियन सुपरमेसी और आइन की सुपरमेसी का सवाल हुआ जिसका जवाब नफ़ी में है। यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं, यहाँ बल्कि रूल ऑफ इलेक्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने पर पिम्स अस्पताल और इस्लामाबाद इंतजामिया को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में मरहूम अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम न करने के खिलाफ वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अरशद शरीफ की वालिदा की तरफ से बैरिस्टर शुएब रज़ाक अदालत के सामने पेश हुए। वकील ने अदालत को बताया कि 3 नवंबर को अरशद शरीफ की फैमिली के फोकल पर्सन ने इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी थी। इंतजामिया ने कहा था कि इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास है। फैमिली फोकल पर्सन पुलिस के पास गए तो उन्होंने भी इनकार करते हुए इंतजामिया से राब्ते का कह दिया। पिम्स इंतजामिया से बारहा राब्ता किया, ना इनकार करते हैं ना रिपोर्ट फराहम करते हैं। पिम्स और लोकल इंतजामिया ने अरशद शरीफ की फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुतालिक अंधेरे में रखा हुआ है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालिदा की दरख्वास्त पर एक्शन लेते हुए पिम्स अस्पताल और इस्लामाबाद इंतजामिया को नोटिस जारी किए और दोनों फरीकैन से 15 नवंबर तक जवाब तलब कर लिए। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को धमकियां देने वाले मुलजिम राय कमर जमान खल का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हाफिजाबाद जलसे में इमरान खान को धमकी देने के केस की पहली समाअत हुई, जिसमें मरकजी मुलजिम राय कमर जमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि इस केस में मशीर वज़ीर आज़म अता तारड़, सायरा अफजल तारड़ और मोहम्मद बख्श तारड़ की 14 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ताहम मुलजिम को दोबारा 14 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत पेश किया जाएगा। ममनुआ फंडिंग केस लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इमरान खान की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की FIA की तलबी की नोटिस पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इमरान खान की ममनुआ फंडिंग में FIA तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहा कि दरख्वास्त समाअत के लिए किसी दूसरे बेंच के सामने पेश किया जाए। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में FIA की तलबी के नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर नोटिस जारी किए, ये सियासी बुनियादों पर इंतकामी कार्रवाई है। अदालत इमरान खान की तलबी के नोटिस पर अमल दरामद से रोके। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि IG पंजाब ने अदालत में गलत बयानी की है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IG ने कहा पंजाब हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका। IG बताए किन वजूहात की बना पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। IG साहब ने इमरान खान को कहा था कि वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे, लेकिन FIR से तीसरे बंदे का नाम निकाल दें। IG पंजाब बताएं वो किससे हदायत ले रहे हैं।
पुलिस ने पीटीआई रहनुमा सुभान अली साहिल को गुलशन बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ताला तोड़कर सुभान अली साहिल को एक घर से गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की जानिब से सुभान अली साहिल की जानिब से किसी तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। पीटीआई रहनुमा की तलाशी के लिए फहीम खान, रियाज सैदर, सैफुल रहमान मुख्तलिफ थानों के दौरे कर रहे हैं, जबकि पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने सुभान अली साहिल की गिरफ्तारी पर मजम्मत करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत पीटीआई के वर्कर से खौफजदा है। सुभान अली साहिल को गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया है। सुभान अली साहिल का क्या जुर्म है, ये भी तो बताया जाए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक ने कहा कि अरशद शरीफ केस में पाकिस्तानी आला हुकाम कभी नहीं चाहेंगे कि हक़ाइक़ सामने आए। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर फॉर्म पर अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाऊंगी। हुकूमत और मेरा कोई राब्ता नहीं। अरशद शरीफ का डिजिटल सामान कीनिया की पुलिस के पास है, उनका डिजिटल सामान पाकिस्तान में उनकी फैमिली को दिया जाए। जवेरिया सदीक ने कहा कि सहाफ़ती तंजीमों ने अरशद शरीफ मामले में पहले भी साथ दिया, अब भी सहाफ़ती तंजीमें साथ देंगी। इंसाफ के लिए सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हूँ। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात बढ़ने लगे। वफाकी काबीना ने ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन 63% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पेट्रोल और डीजल पर OMC मार्जिन की मद में ₹2.32 फी यूनिट फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल 16 नवंबर से कम ₹2.32 महंगा होने का इम्कान है, जबकि यह इजाफा माली गुंजाइश और वजारत खजाना की पेशगी मंजूरी से मशरूत होगा। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल का दूसरा और आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, जबकि पाकिस्तान में इसका मुशाहरा जुज़वी तौर पर किया जाएगा। इस चांद ग्रहण का मुकम्मल मुशाहिदा एशिया के कुछ हिस्सों में और ऑस्ट्रेलिया में किया जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद को ग्रहण दिन 1:02 पर लगना शुरू होगा। 3:17 पर चांद को मुकम्मल ग्रहण लगेगा और 4 बजकर ग्रहण अपने अरूज पर होगा, जबकि 6:56 पर शाम के औकात में चांद ग्रहण का इख्तिताम होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मौसम सरमा की हल्की और तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में शारा फैसल, मलेर, गुलिस्तान, जौहर, नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा क्लिफ्टन, क़य्यूमाबाद, कोरंगी और लांडी में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मगरबी हवाओं के असरात बूंदाबांदी और हल्की बारिश की सूरत में नज़र आ रहे हैं। कराची के जनूबी हिस्सों में वक्फे से बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो रही है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में फैलने पर मज़ीद बारिश हो सकती है। विराट कोहली ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर के महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया, जो भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली के नाम रहा, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर की भी इस अवार्ड के लिए नामजदगी हुई थी। ICC अवार्ड मिलने पर विराट कोहली ने कहा कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मुंतखब किया जाना मेरे लिए एजाज़ है। मैं इस अवार्ड के लिए नामजद किए जाने वाले अपने टीम मेंबर समेत दीगर खिलाड़ियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। जबकि ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ में पाकिस्तानी ऑलराउंडर निदा डार को अक्टूबर के महीने में शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मंथ करार दिया गया। ट्विटर के बाद मेटा ने भी बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मलकियत रखने वाले कंपनी की जानिब से रवा हफ्ते बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग किया जा सकता है। दुनिया भर में 27,000 से ज़्यादा अफराद मेटा के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी की जानिब से हज़ारों
افراد کو فارغ کیے جانے کا عمل 9 نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ مشہور یوٹیوبر لوگن پال کا سعودی عرب میں ریسلنگ میچ کے دوران گھٹنا ٹوٹ گیا۔ گزشتہ سعودیہ دارالحکومت ریاض میں ہونے والے WWE یونیفائیڈ یونیورسل چیمپئن شپ میں رومن رینز سے مقابلے کے دوران انہوں نے رنگ کے اوپر چڑھ کر چھلانگ لگائی، جس میں وہ اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھے۔ زخمی ہونے کے بعد لوگن پال ویل شیئر پر سعودی عرب سے روانہ ہو گئے، جس کے وہ اب کئی ماہ تک ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے۔ اور 27 سالہ لوگن پال نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ممکنہ طور پر میری ٹانگ کا جوڑ زخمی ہو گیا ہے۔ اگر میں بنگلہ دیش کا کوچ یا کپتان ہوتا تو ٹیم کے لڑکوں کو ماہر نفسیات کو دکھاتا۔ لڑکوں کو ماہر نفسیات سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے بنگلہ دیشی بیٹرز کی غلطیوں پر کھری کھری سنا دی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم نے کافی غلطیاں کی، لیکن خوشی ہے کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کو اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ اگر میں بنگلہ دیش کا کپتان یا کوچ ہوتا تو ان کے کھلاڑیوں کو لازمی ماہر نفسیات کو دکھاتا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں جب آپ دیکھیں کوئی ایک خاص بولر بال کرنے آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مخالف ٹیم کا کپتان اسے وکٹ لینے کے لیے لا رہا ہے، اس لیے آپ اس پر بڑے شاٹ نہ لگائیں، صرف آسٹریک روٹیٹ کریں۔ مگر بنگلہ دیش کے بیٹرز نے دماغ بنایا کہ وہ شاہین کو ہی ہٹ کر گئے۔ فرانسیسی ماڈل اور ریئلٹی ٹی وی اسٹار میرین ایل ہائمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ہائمر نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے 2 دن بعد گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں دین اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے قریب حجاب میں اپنی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ اس لمحے میں محسوس ہونے والی خوشی اور جذبات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اتنے مضبوط الفاظ نہیں ہیں۔ ایک روحانی سفر جس کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری ترقی اور رہنمائی جاری رہے گی۔ اور امریکی نوجوان نے خاص انداز سے 1 منٹ میں 1140 تالیاں بجا کر نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 1 منٹ میں سب سے زیادہ تالیاں پیٹنے کا غیر معمولی ریکارڈ ہے۔ یہ ہنر 20 سالہ ڈالٹن میئر کو آتا ہے، جنہوں نے سب سے تیز تالی بجانے والے ایک شخص کینٹ فرینچ کی ویڈیو دیکھ کر خود بھی اس کی مشہور کی، یہاں تک کہ وہ اب بہت تیزی سے تالیاں بجاتے ہیں، جبکہ ڈالٹن نے کہا کہ تالیاں بجانا